students, in the last lecture, we were discussing about what is the relationship between Gibbs free energy and E of cell. So we have discussed about that. The Gibbs free energy of a reaction is directly proportional to charge and electric potential, which is equal to minus of NFE naught. Okay, now today's lecture we will discuss about what is electrical resistance. As everybody knows that as we know that if we consider a conductor, that conductor can conduct electricity, but if that can conduct electricity, there has to be some electrical resistance. So electrical resistance was given by Ohm. How he has considered electrical resistance? He basically shows that the current passing through a conductor is directly proportional to potential, which is known as Ohm's law. Okay, so current passing through a conductor is directly proportional to potential, or potential is directly proportional to current. That means V is equal to IR, where R is constant, and that constant is known as electrical resistance. It is measured in ohm with the help of Wheatstone bridge. The electrical resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of क्रॉस सेक्शन. मतलब आपके पास जितनी ज़्यादा लंबाई होगी किसी भी कंडक्टर की, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जितना ज़्यादा उसका एरिया ज़्यादा रहेगा क्रॉस सेक्शन का, मतलब आपकी जो मोटाई वो जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही कम रेजिस्टेंस रहेगा. So resistance is directly proportional to length, inversely proportional to area of cross section. So resistance is equal to rho L by A. Rho is resistivity. Okay. Now V is equal to IR is your Ohm's law, which suggests that resistance is equal to what? In that case, resistance is also equal to V over I. So next is in this equation the constant of proportionality denoted by rho, and which is resistivity. It is measured in the units of ohm meter. The resistivity is measured in the units of ohm meter. अगर लेंथ आपके पास 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे भी. जैसे देखिए आप, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए. अगर मैं इन दोनों को एक एक कर देता हूं तो आपके पास रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विल बिकेम इक्वल. इफ लेंथ इज 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर. 1 ओम मीटर जो आपका वो 100 ओम सेंटीमीटर के बराबर होता है. 1 ओम सेंटीमीटर 0.01 ओम मीटर के बराबर होता है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. नाउ इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. So what is electrical conductance? The inverse of resistance is known as conductance. Conductance is equal to 1 by R. So we know that R is equal to rho L by A. If we inverse the R, then we will find out that A rho by L. And 1 by rho or inverse of resistivity is known as conductivity, जिसको हम कापा से represent करते हैं. This is your conductivity. Okay. इट इज़ मेजर्ड, जो कंडक्टेंस है उसे मेजर करते हैं सीमेंस में, विच इज़ रिप्रेजेंट बाय सिंबल एस. इट इज़ आल्सो इक्वल टू ओम इनवर्स और महो. और रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस, तो इसीलिए हम इसे ओम इनवर्स में मेजर करते हैं, या फिर महो में, या फिर इसे सीमेंस में मेजर करते हैं भी. नेक्स्ट इज द फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड. Electrical conductance depend upon nature and structure of metal, nature of valence electron per atom. Electrical conductance decrease with increase in temperature, और इसका उल्टा भी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है. ओके, इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर की बात चल रही है भैया. नेक्स्ट इज, as this picture shown, that the free sodium ion and chloride ion in a solution are responsible for conductance in the solution. The inverse of resistivity is known as conductivity. अगर आप resistivity का उल्टा करते हो ना rho का, that is 1 by rho is equal to
kappa, that is kappa is a symbol which is used for resistivity. Okay, it is measured, resistivity का उल्टा जो है भाई उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की यूनिट्स जो है वो रजिस्टिविटी के उल्टे रहेंगे. लेंथ 1 मीटर है आपके पास, क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इन दैट केस. ओके, now the conductivity of an electrolyte solution depends upon nature of electrolyte. एक electrolyte solution कौन सा होता है भाई, there are two type of electrolyte solution, one is strong electrolyte, one is weak electrolyte. एक electrolyte solution वो होता है जो जिस टाइम डिसोल्व हो जाए वाटर में आयंस फॉर्म करता है. अगर वो पूरा डिसोसिएट होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर कम डिसोसिएट होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स यू आयंस. ओके, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड इन देयर सॉल्वेशन पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इस विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है कंडक्टेंस, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है. इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो इफेक्ट है अभी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. इसको हमने भाई सॉलिड स्टेट में भी डिस्कस करा था, मैं दोबारा बता देता हूँ. कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स. कंडक्टर्स भी जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मैं बता रहा था आपको दैट वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्टिविटी इन नेक्स्ट चैप्टर्स, दैट इज 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ये किसके यूनिट होते हैं भाई, ये यूनिट्स होते हैं कंडक्टिविटी के, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. अगर 10⁷ के ऑर्डर की कंडक्टिविटी है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, जैसे आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. सेकंड इज इंसुलेटर, अगर 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है तो वो इंसुलेटर है. अगर इनके बीच में है कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ आना चाहिए था भैया, तो उसको आप बोलते हो सेमी कंडक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल गैलियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन. सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A, और रेजिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू, और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है भाई, कंडक्टिविटी. इट्स आल्सो इक्वल टू L/K इंटू A, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है. L/A जो है लेंथ अपॉन एरिया इज अ सेल कांस्टेंट, इसको हम G से डिनोट करते हैं. सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट L/A लेंथ अपॉन एरिया इज योर G सेल कांस्टेंट. द सेल कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. It is determined by measuring the resistivity of cell containing in a solution of known conductivity. अगर आपको L/A मेजर करना है, सो G इज इक्वल टू R इंटू के, ये आपका G के इक्वल रहेगा, ये इस तरफ चला जाएगा, तो R इंटू के इक्वल रहता है. सो G कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, रजिस्टिविटी चाहिए और नॉन कंडक्टिविटी चाहिए. ठीक है, अगर आप किसी भी सेल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाए जिसकी कंडक्टिविटी आपको पता है सॉल्यूशन की, तो आप क्या मेजर कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट मेजर कर सकते हैं. सो व्हाट इज द अरेंजमेंट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. अरेंजमेंट्स भी आपके पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उससे हम मेजर करते हैं. उसे कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. अरेंजमेंट्स जो है उसमें 2 रेजिस्टेंस हैं, R2 और R3 और R4, और 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं, दैट इज एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है R1, और एक कंडक्टिविटी सेल है जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता. ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक ऑसिलेटर O जो है वो एक्ट कर रहा है AC सोर्स का. इस पर्टिकुलर फॉर्मूला है आपके पास दैट R2 इज इक्वल टू R1 R4 बाई R3. R1 R4 बाई R3 इनकी वैल्यूज हमें पता है, इनसे हम R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अ कंडक्टिविटी सेल. अब कंडक्टिविटी सेल क्या होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बारी पूछा जाता है. एक कंडक्टिविटी सेल भाई, हम इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जो हमारे पास बेसिकली रेजिस्टेंस होते हैं वो सॉलिड होते हैं.
ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमें सोल्यूशन के लिए कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को एक इलेक्ट्रोड के साथ डिप करते हैं, ओके, उसको हम कनेक्ट करते हैं विद द वायर्स, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है। आपने रेजिस्टेंस निकाला तो यहां से आप क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस करके कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूशन। ऐसे ही आपके पास नॉर्मल कंडक्टिविटी रहेगी। नॉर्मल कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूशन, बट देयर आर फ्यू कंडीशंस। सो कंडक्टिविटी से कैसे रिलेट है, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, ओके। कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं भाई, साइमन मीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होते हैं। और मोलैरिटी अगर आपके पास मोल्स पर लीटर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलैरिटी को लीटर पर मीटर क्यूब के लिए, ओके। आपका जो मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं बहुत बारी पूछे जाते हैं, दैट इज साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ओके। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इनटू 1000, ऐसे आप मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कंडक्टिविटी 0.20 मोलर सॉल्यूशन की KCl की 298 केल्विन पे 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, कंसंट्रेशन इतनी है, कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। इस केस में आपके पास साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है और इस केस में साइमन मीटर इनवर्स था। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें भाई, अगर आपके पास मीटर इनवर्स है तो 1000 को नीचे डिवाइड करना है, अगर सेंटीमीटर इनवर्स है तो 1000 को K से मल्टीप्लाई करना है, ओके। 0.024 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास कंडक्टिविटी आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।